सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। छोटी सी इश्तियालंगेजी का भी तवक्कुआत से बढ़कर और फैसलाकुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि मुकद्दस पाक सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। भारत की जुग्राफियाई वुसअत के गलत अंदाजों को चकनाचूर कर देंगे। काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि भारतीय धमकियों से कभी खौफजदा नहीं होंगे। Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-u-Marsus, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। तालिबान हुकूमत दायमी तशद्दुद के बजाय बाहिमी तहफ़्फ़ुज़ का इंतखाब करे। भारत की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा जैसे रिवायती महाज पर कामयाबी समेटी वैसे ही इन प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देंगे। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया है। दुनिया के सामने भारत के मकरू, मुनाफिकाना और संगदिल चेहरे को बेनकाब कर दिया। Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी सलामती और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोहा में अहम मुज़ाकरात। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात में शरीक है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकना मुज़ाकरात के एजेंडे में सर फहरिस्त है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का महवर अफगान सरज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी किसी सूरत कबूल नहीं। आपको बताएंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी सलामती दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोहा में अहम मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात में शरीक है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकना मुज़ाकरात के एजेंडे में सर फहरिस्त है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का महवर अफगान सरज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी किसी सूरत भी कबूल नहीं। दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया।
वजीर आजम की बात करते हैं। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने फतह से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने मुआरका हक में फ्रंट से लीड किया। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं आ पाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। तमाम मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामजन हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह से नवाजा हिंदुस्तान के मुकाबले में, और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी। उन्होंने फ्रंट से लीड किया। शाहीनों ने वो कामयाबी के झंडे गाड़े कि हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सकेगा। इसी तरीके से जो हमारी जो माशी हालत थी, वो जब हमने इक़्तिदार संभाला बहुत मुश्किल चैलेंजेस थे, और आज हमारी मईशत के जो इशारे बहुत बेहतर हैं। फिर सफारती महाज पर भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो कामयाबियाँ अता की कि तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। गजा में पाकिस्तान ने भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिस्सा डाला, और यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप को उसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फ्रंट से लीड किया। पाक अफगान सीज फायर के दौरान फितनल खवारिज के पाकिस्तान के अंदर बुज़दिलाना हमले। शिमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश धमाका करके 3 खवातीन और 2 मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 खारजी जहन्नुम वासिल। मुगल कोट सेक्टर बनू में भी इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। फितनल खवारिज का सरगना तारिक हिच्ची अपने साथी हकीमुल्ला उर्फ टाइगर समेत मारा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़क कहते हैं, गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों में गुल बहादुर ग्रुप के कैंप्स को भी निशाना बनाया, जिसमें 60 से 70 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। रिपोर्ट करेंगे सुमेरा खान। पाकिस्तान खिते में बड़ी कुव्वत के तौर पर उभरा। मुस्लिम ममालिक और आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने खिताब में कहा, हरमैन शरीफैन की पासमानी पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा मजबूत ताल्लुकात का आकाश है। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की दुनिया में अमन लाने की कोशिशों को काबिल तारीफ करार दिया। Pakistan has successfully emerged as a net regional stabilizer in our region. Our relations with key global and regional powers, particularly Muslim countries, have further strengthened. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. The recent strategic mutual defense agreement with the Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood. It's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Harmain Sharifan. Pakistan has also made humble contributions towards peaceful steering of the negotiations with Iran. We stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक अफगान जंग रुकवाने की हामी भर ली। कहा, यह जंग रुकवाना मेरे लिए सबसे आसान है। इंसानों को कत्ल होने से बचाना मुझे बहुत पसंद है। Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, 2 nuclear nations, right? So I say this, this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives. गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान कभी जंग में पहल नहीं करेगा, जारहियत पर उधार भी नहीं रखेगा, किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़, खेल से खिलवाड़ की नई दास्तान। हालिया कशीदगी को जवाब बनाकर पाकिस्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट से भाग निकला। अफगान बोर्ड ने एक्स पर इवेंट से दस्तबरदारी का ऐलान किया। कप्तान राशिद खान का भी तासुब, एक्स के बायोलिंक से लाहौर कलंदर्स का नाम हटा दिया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का अफगान एक्शन पर रिएक्शन। कहा, अफगानिस्तान ने सारे एहसान भुला दिए।
भारत से यारी, अफगानिस्तान की मक्कारी, बुरे दोस्त की बुरी सोहबत, खेल से खिलवाड़ की नई दास्तान। अफगानिस्तान पर भी भारत का रंग चढ़ गया। पाकिस्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट से भाग निकला। हालिया कशीदगी को जवाज बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अफगान कप्तान राशिद खान का बुग़्ज़ भी खुलकर सामने आ गया। बोर्ड की हाँ में हाँ मिलाई, अपनी असलियत दिखाई। राशिद खान ने एक्स के बायो लिंक से लाहौर कलंदर्स का नाम हटा दिया। शाहिद आफरीदी का अफगान बोर्ड के तर्ज अमल पर शदीद रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानों को पनाह दी, उनकी मुश्किलात को अपनी मुश्किल समझा। अफगानिस्तान ने सारे एहसान भुला दिए। अफगानिस्तान ने सरहदों पर खुली जाहरियत की, जिसका हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर अफगान क्रिकेटर राशिद खान को अनफॉलो कर दिया है। शाहीन आफरीदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं। राशिद खान के बयान पर अफसोस हुआ। अफगान क्रिकेटर ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से लाहौर कलंदर्स का नाम हटाया था। और पाकिस्तान को अफगानिस्तान का मुतबादिल मिल गया। जिम्बाब्वे ने 3 मुल्की टूर्नामेंट में शिरकत की दावत कबूल कर ली। नवंबर में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे हिस्सा लेंगे। पहला मैच 17 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी में होगा। फाइनल 29 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा। 7 में से 5 मैचेस लाहौर और 2 रावलपिंडी में होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने पासिंग आउट परेड का मायना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने बाबर कंपनी को कायद-ए-आज़म अवार्ड से नवाजा। बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ शमशीर अहमद मुश्तबा आरिफ को दी गई। मुबारक हो कि तुम इस दर्सगाह से कामरान निकले। सरे मैदान यहाँ से सूरते तैगे रवान निकले।